جب وقت نظر آئے آقا دیدار رمضان عشق نشریات میں آج 16 رمضان المبارک یہی وقت تھا، اور حسان میں اور میری ایک ٹیم کی ممبر سہرش مظہر، ہم تینوں نکل گئے تھے راستے میں، اور ہم مسلسل یہی کر رہے تھے. میرے ہسبینڈ کا مجھے فون آ رہا تھا اور وہی کہہ رہے تھے کہ میں پتہ کروا رہا ہوں. میں نے کہا پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ کاش یہ خبر جھوٹی ہو، پلیز مجھے بتائیے، جلدی سے بتائیے. جھوٹی ہے نا؟ صرف وہ زخمی ہوئے نا، وہ ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ خبر. اور ہم پورے راستے اس کیفیت میں، جو ہم لوگ پورا راستہ جب ہم لیاقت آباد تک پہنچے ہیں، ہم یہی کہ جھوٹی ہے نا خبر، جھوٹی ہے، کچھ نہیں ہوا ان کو، خراش آئی ہوگی، چوٹ آئی ہوگی، ٹھیک ہوں گے، سانس لے رہے ہوں گے، چلے ایک گولی لگ گئی ہوگی. اندازہ نہیں تھا. پھر میں اوپر گئی بھابھی کے پاس. بھابھی نے مجھے میرے گریبان سے پکڑ لیا. بھائی تمہارے پاس بھیجا تھا، واپس کیوں نہیں لے کر آئیں اپنے ساتھ؟ اور اس کیفے پہ مجھے نہیں پتا حسان، میرے ہسبینڈ عزیر یہ کہاں تھے. یہ لوگ میرے شہید گڈے بھائی کو دیکھ آئے تھے، اور انہوں نے کہا آپ نہیں دیکھ سکتے. میرے آنکھوں میں جو ان کی شکل اور ان کی چہرہ اور ان کی باتیں اس لیے ہر وقت ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں کیونکہ میں نے اس کیفیت، اس حالت میں ان کو نہیں دیکھا. اور میں کہتی ہوں اچھا ہی ہے میں نے نہیں دیکھا، بہت اچھا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں دیکھ بھی نہیں سکتی. خواتین حضرات، یہ سیگمنٹ آؤ مدینے چلیں امجد بھائی کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. یہ ایوارڈ امجد صابری شہید ایوارڈ جیتنے والے کو دیا جائے گا، اور جو دینے کے لیے آئیں گی وہ اماں آئیں گی، بھابھی اور بچے دوبارہ آئیں گے. میں نے ان سے کل ہی وعدہ لے لیا، میں نے کہا آپ آئیں گی ایوارڈ دینے کے لیے، سو انشاءاللہ. لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے رحمان بھائی سے ایک سوال کیا تھا، اگر آپ اجازت دیں. میں نے کہا صرف مجھے مختصراً یہ ضرور بتائیے گا، جب آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور 2 دن پہلے آپ سے وہ وعدہ لے کر چلے گئے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوئی؟ وہ ساری آنکھوں میں آپ کی گھوم گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ مقابلے کو بھی آکے لے کے چلیں گے اور تابندہ آپس سے بھی سنیں گے. آج بڑا پیارا کلام پڑھنے والی ہے امجد بھائی کا. وہ اصل میں اس طرح تھا کہ ریحان بھائی، حسان بھائی، ہم سب ساتھ ہی کھڑے تھے. تو جب 2 دن پہلے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے جلدی جانا تھا. تو میں نے کہا آپا، میں نے آپ سے کہا آپا السلام علیکم، بس میں نکلتا ہوں. تو ایسا ہاتھ پکڑ گیا، تم نہیں جاؤ گے، اب تمہیں جانا ہی نہیں کہیں. تو میں نے کہا مجھے ڈان نیوز جانا ہے، نام لیا. تو انہوں نے کہا اس ڈان کو چھوڑ کے تمہیں دوسرے ڈان کو نہیں پکڑنا. یہ سارے الفاظ سے. اچھا ہوا 15 کی رات کو پھر ٹیلی فون کیا انہوں نے. میں نے کہا امجد بھائی آج کل تو ملیں یار، وہ دل چاہ رہا تھا. پھر کچھ باتیں تھیں دوا کے حوالے سے ہوتی. جب شہادت کی میں نیوز پہ تھا، بیٹھا تھا نیوز چینل پہ ایک، اور وہاں پہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا تھا. جیسی میرے سامنے ایک سلاٹ چلی نا، میں نے دیکھا سامنے ٹی وی پہ کہ امجد صابری شہید ہو گئے. اب یقین مانیں کہ کچھ دیر تک میں شکل دیکھتا رہا کہ ہوا کیا ہے. ایسے ہی ایک سختی کے اندر مجھے پھر وہ امجد بھائی کا ہاتھ ایسا لگا جیسے امجد بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا کہ جانا نہیں، چھوڑنا نہیں، ساتھ رہنا. وہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ایک لمبا چوڑا سا آدمی جو 24 گھنٹے مسکراتا تھا، جو ہر کسی سے محبت سے پیش آتا تھا، جو بڑے چھوٹے میں تمیز نہیں کرتا تھا، جو ایک عاجزی کا پیکر تھا، جو انکساری کا پیکر تھا، جو محبتیں بانٹنے والا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مجھے وہ حدیث ذہن میں آئی، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کل یوم وصال بھی ہے. نبی علیہ السلام ان سے خوش اور کہا اے عائشہ مانگتی ہو کیا؟ جو مانگنا ہے مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آپ اپنے والد کے پاس گئیں تو والد نے کہا کہ جو معراج کے دن میں جو باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے کوئی بات اللہ کے نبی سے پوچھ لیں. تو پوچھا کہ کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی کہ حضور یہ بتائیے کہ معراج میں سرکار نے کیا باتیں کی تھی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا دل جوڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کی اسے اپنے قریب کر لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ بات بیان کی سیدنا ابو بکر سے، وہ رونے لگے. کہا کہ آپ کیوں روتے؟ کہا کہ اس کا الٹ سوچو، جو لوگوں کا دل توڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم میں ڈال دے گا، اور کل قیامت کی اپنی نظر خاص نہیں کرے گا. امجد بھائی کے جانے سے بہت لوگوں کے دل ٹوٹے، جنہوں نے شہید کیا، بہت لوگوں کے دل ٹوٹے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے. یاد رکھیے یہ حکمن شہید ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہیں. میں پھر وہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی کہ جب کل قیامت، یہ جب نبی اسلام یہ جب قبر میں گئے ہوں گے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوں گے. اللہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اور یہ ابھی مجھ سے بریک میں ریحان بھائی پوچھ بھی رہے تھے. آپ پوچھ رہے تھے نا, یہ بھائی بتا گیا آپ, یا آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا؟ میں نے آف ایئر پوچھ رہا تھا کہ ایک دو لوگوں نے سوال کیا کہ امجد بھائی جو پڑھ کے چلے گئے کہ میں خبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تک امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. تو میں سوال کر رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں, تو اس کا جواب علامہ صاحب. یہ سوال تھا ان کا, کیونکہ آخری الفاظ سے امجد بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے, رحمۃ اللہ کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے, کہ قبر میں جب وہ تشریف لائیں گے. اس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. یہ امام بخاری سند کے ساتھ یہ حدیث لاتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں, اور فرشتے آ کے اس طرح پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا ان کے بارے میں یہ کون ہے جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے, جس کی زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی ہے, وہ فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ قبر میں گئے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے بھر دو جولی میری یا محمد. نبی اسلام کی اتنی نعتیں بڑی ہیں, یہ سب حدیث سے ہیں, اور اس سے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ عاشق مصطفیٰ تھا, عاشق رسول تھا, اللہ اس کی بخشش فرمائے. آمین. اور جو میری وہ جو آخری سحری تھی, اتفاق سے مجھے بھی جانا نہیں تھا اس دن, اور پتہ نہیں علی کا فون آیا تو میں نے کہا چلو اچھا ہم آ جاتے ہیں. امجد بھائی کو بھی نہیں آنا تھا. اور اس دن میں نے کل پی ٹی وی گئی تھی تو بتایا تھا کہ اس دن پی ٹی وی پہ جو پروگرام کیا انہوں نے, ایک ایک کو پکڑ تصویر بنوا لی, اب بنوا لو پھر موقع نہیں ملے گا. اچھا, اور جب سحری کر رہے تھے ہم, اچھا جب آ کے وہ جھگڑا کیا انہوں نے, میں بتایا تھا کل کہ وہ مایا نے یہ اتنا زبردست کام کیا یہ وہ, جی تو وہ میں نے ان سے کہا امجد بھائی آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. تو کہنے لگے یار اس دفعہ مزہ نہیں آ رہا, سوچ رہا ہوں بیگم کو لے کے عمرے پہ چلا جاؤں آخری عشرے میں. تو میں نے کہا آخری عشرے میں تو مقابلہ ہے. کہنے لگے پر دل نہیں لگ رہا. پھر انہوں نے سحری بھی نہیں کی, اور میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا آپ سحری نہیں کر رہے, میں نے کہا آپ میرا پراٹھا نہیں لائے. بولے آج میں گھر سے ڈائریکٹ ایسے ہی آ گیا. اور دوسری بات انہوں نے کہا نہیں بھائی, سب کو مشورہ دیا. اور جب انہوں نے یہ پڑھا نا تو وہ رشید گڈیل صاحب کا فون ہے, نہیں بس کرائنگ ہچکیوں سے, یار تم نے کیا پڑھ دیا یار. ہم کہہ رہے ہیں ہم سب پتھر کے جیسے بنے ہوئے. میں نے زندگی میں یہ کلام بے شمار لوگوں سے سنا, خود کبھی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. اور اس دن جو امجد بھائی نے پڑھا ہے, میں نے امجد بھائی کو شاید روتے بھی کبھی نہیں دیکھا, خوشی دیکھا ہمیشہ. مگر پتہ نہیں کیا تھا, وہ کیا وعدہ لینے چاہ رہے تھے اور کیا. اور میں نے آپ کو کل وہ اس ڈرائیور کا میں قصہ آپ کو سنا دوں جو آخری دفعہ اس دن ان کو لے کر گیا تھا, کیونکہ جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ انہیں آنا ہے. وہ ڈرائیور جب 29 رمضان کو ایسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں بات کہتے کتنی رونق ہے, لیکن سما کی تو رونق ہی ختم ہو گئی, مقابلہ یہ امجد بھائی نہیں ہے تو اس پہ اس نے کہا کہ ہاں باجی میں ہی تو مصدق یا صادق نام ہے اس کا, اگر وہ دیکھ رہا ہو تو, کہ اس نے کہا باجی وہ میں ہی تو لے کر ان کو گیا تھا آخر میں. تو فوراً کیوریسٹی ہوئی کہ اچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی راستے میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس سے لگے کہ کوئی آدمی جانے والے کو جیسے لگے. کہنے لگا نہیں, گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے ایک بات کہی کہ یار تمہاری کوئی فرمائش ہے تو مجھ سے سن لو. تو اس نے کہا کہ اللہ کتنی یادیں ہیں, کتنی یادیں ہیں. آپ دیکھیں وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے فرمائش کروں. پھر انہوں نے کہا دیکھو دوبارہ پھر میں موقع نہیں ملے گا. تو یہ بہت لوگوں سے کہا آپا, یہی تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کتنے لوگوں سے. آئی ایم سو سوری, لوگوں کی بات میں کاٹ رہی ہوں, لیکن وہ کیونکہ ہمیں ظاہر سیگمنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور آج مجھے چھوٹی سی ایک بات تھی, امجد بھائی کے بالکل آخری الفاظ تھے. 15 کے مجھ سے ٹیلی فون کر کے یہی کہنے لگے, شاید میں کبھی نہیں بتاتا, کہنے لگے کہ یار مجھے ایک بچی یتیم ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, اس کو 3 لاکھ روپے دینے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب تم دو تو اپنے نام سے دو. پیسے ان کے تھے, پیسے ان کے تھے, پیسے ان کے تھے. ارے کتنی باتیں ہیں, میں تو یہ حیران ہوں کہ ہم لوگوں کے ٹائم زندگی اتنی یادیں اتنی باتیں ہیں. اور جامع شیری والوں کے لیے ایک بڑا اچھا میسج ہے. آپ پر ٹائم نہیں میرے پاس, مجھے یہاں پہ بہت معذرت. سفر کے بعد حاضر ہوتی ہوں. آج 3 کنٹیسٹنٹس ہیں, تینوں کراچی سے ہیں. یہ مقابلہ دوسرے پڑاؤ میں جا رہا ہے. تینوں لاہور سے ہیں, تینوں لاہور سے ہیں. اور ایک اور جو اناؤنسمنٹ ہے سیکنڈ آنے والے بچے کے حوالے سے, وہ بھی بہت اسپیشل اناؤنسمنٹ ہے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف
ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے۔ قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی۔ اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں۔ پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر۔ ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ۔ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے۔ لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आप और तारीख़ बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आ जाना रसूल 24 न्यूज HD पर आप हैं हमारे साथ। रमजान इश्क है नशे खान की पूरी टीम इस वक्त आज का दिन मना रही है आप लोगों के साथ और अमजद भाई आप लोगों के साथ। तो आज थोड़ी देर बाद हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कब्रिस्तान से बराह रास्त आप लोगों को वहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। वहाँ पर आज कौन कौन है, कौन कौन गया है, आज पहली बरसी है उनकी, तो कैसे मनाई जा रही है ये आप ज़रूर देखिएगा बराह रास्त। आओ मदीने चलें सेगमेंट हमारा जीतने वाले जो नंबर 1 जो टॉप 3 होंगे कंटेस्टेंट्स, उनमें से तीनों को मिलेगा अल हरमैन की तरफ से उम्रे का पैकेज। जो नंबर 1 जो टॉप पोजीशन पर आएंगे उनको मिलेगा हबीब की तरफ से कार, और जो तीसरा इनाम है वो है अमजद साबरी शहीद अवार्ड। लेकिन आज इन इनामात में एक और इजाफा हो रहा है। जो सेकंड नंबर पर कंटेस्टेंट आएंगे उनको हिमानी की तरफ से भी उम्रे का पैकेज दिया जाएगा, यानी कि उनके पास अब 2 उम्रे के पैकेज हो गए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह अभी मैंने कहा था ना आहिस्ता आहिस्ता दिन बढ़ते जाएंगे और मजीद इंशाल्लाह राजा भाई बेहतर होता जाएगा। बस आप लोग जो दुआएं पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें ताकि हमारी जो ट्रांसलेशन है वो और बेहतर होती जाए। वो अल्लाह करे स्पॉन्सर्स को जजेस का भी ख्याल आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा जिसके लिए दुआएं करने वालों को मूसा भाई, नवाजिश भाई हम लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि जजेस का भी ख्याल होना चाहिए। तो बस आपको पता तो है ना मैंने आपसे और मैं तो आपके पहली बार आई हूँ ना। अदर ले लो हमारी बिल्कुल न्यू छोटा हमारा जो है ना बीबी जज हमारी छोटी बहन अविंदा आपा वो तो फर्स्ट टाइम आई है आप लोग। तो इंशाल्लाह रब ने चाहा तो हम सब साथ आका के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक कबूलियत फरमाए। जी जावेरिया लाहौर लेके जा रही हैं आप हमें? चलो सबसे पहले देखने वालों को और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मेरा सलाम। लेवल बिला ताखीर आगे बढ़ेंगे। लाहौर में 3 कंटेस्टेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं जिनमें सबसे पहले हैं फरीद हुसैन। तो चलिए सुनते हैं आज फरीद हुसैन कौन सा कलाम पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाह। आपका सदका है दुनिया जिंदगी है आपसे वुसअते कोनो मकाम में रोशनी है आपसे
सदका है दुनिया आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी चांद के बेहिस बदन में रोशनी है आपसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। आज के जो तीनों कंटेस्टेंट्स हैं वो हमारे जजेस के बड़े पसंदीदा हैं और बड़ी उम्मीदें भी उनसे वाबस्ता हैं। अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। उवैस साबरी हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं कि ये कौन सी नात पेश करेंगे और कितनी खूबसूरती से पढ़ेंगे। बेहतरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जगहें सब लगाते हैं, लेकिन किस जगह कौन सी जगह लगानी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझ के लगाना। वाह वाह माशाल्लाह। उवैस साबरी से गुजारिश करूंगी बस नाम दोबारा बता दीजिए। उवैस साबरी। उवैस साबरी। वाह वाह उवैस साबरी। अपनी हम शुरू का ऑडियो ना सानी तेरा कौन में है तुझ सा बेसाया नजर आया नदारैन में है तुझ सा बेसाया नजर मेरे सरकार की क्या शान है अल्लाह रिफ़ते अर्श भी सिमटी हुई नालैन में है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। उवैस साबरी साहब आज तो माशाल्लाह मुझे साबरी मोहब्बत और साबरी इश्क और साबरी सुर सुनाई दिया। वाह वाह माशाल्लाह। है आज सभी फॉर्म में है भाई, मुश्किल है। ठीक है, आप लोगों को बताते चलूँ हमारी टीम हमें बता रही है गाए बगाए कि कुछ ही लम्हों बाद हम आप लोगों के साथ बराह रास्त होंगे अमजद भाई की कब्र से और लाइव वहाँ से आपको दिखाएंगे वहाँ के मनाजिर। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग थोड़ा बहुत मसरूफ़ हैं आप दूसरे को इकट्ठा कर लें ताकि हम सब साथ मिलकर ही फातिह खानी कर सके, तो आप अच्छा लगेगा सब मिलकर।
علی ریڈی ہیں؟ علی زبردست. علی ہمارے رپورٹر. جی جی آئی ایم ریڈی. السلام علیکم علی, ایک بار پھر. وعلیکم السلام مایا. میں اس اسکرین پر آ جاتی ہوں. علی, کون کون پہنچ چکا ہے, وہاں کے کیا منظر ہے, کیا سوال تو غلط ہوگا کہ کیا کیفیت ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے ہمیں بتائیے. ہماری آنکھیں بنی ہیں وہاں پر, بتائیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. مایا نہ صرف آنکھیں اس وقت بننے کا مقام ہے, بلکہ وہ احساسات, وہ جذبات جو میرے خیال سے نہ صرف اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں یا ان کے اہل خانہ محسوس کر رہے ہیں, بلکہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں امجد بھائی کے چاہنے والے موجود ہیں وہ اس وقت ان تمام مناظر کو جو ہے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے اور محسوس بھی کر رہے ہوں گے. میرے بالکل عقب میں جو ہے یہ امجد بھائی کی قبر ہے, جہاں پر ان کے اہل خانہ اس وقت موجود ہے, دعا پڑھی جا رہی ہے. علی 2 لمحے دیجیے گا, ہم ذرا دعا کرنا چاہ رہے ہیں. 2 منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا. ہم اسی کو کیمرہ یہیں رکھیے, ہم ذرا چاہیں گے کہ ذرا کیمرہ وہیں رکھیے اور ہم سب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مع علي جودكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مع عدل الجود والکرم. اے اللہ پڑھنے سننے میں جو غلطی ہے, گستاخی, بے ادبی, اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ اس کو معاف فرما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا دے. آپ کے اہل بیت کرام, آپ کے ازواج مطہرین بالخصوص ان سب کا ثواب ہمارے مرحوم مغفور بھائی شہید امجد صابری کی روح کو پہنچے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ان سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ نے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو, ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما دے. اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے, صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی لوٹ کر تیرے پاس آنا ہے. اے پروردگار عالم ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ جو جن لوگوں دلوں میں یہ غبار ہے, اے اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آتے ہیں اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے کرنے آ جانا رسول اللہ, روشن میری قربت. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना अच्छा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना
को पहला घसीटा तो मेरा नाम तो छोटी सी शेयर करती चलूँ आप सबके साथ कि अभी मैं जब वहाँ पर थी घर पर, तो मुझे वहाँ उनकी बहन ने बताया कि दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ से चादरें नहीं आई। इंडिया से लोगों ने चादरें भेजी है, साउथ अफ्रीका से लोगों ने चादरें भेजी हैं, क्योंकि हमारे भाई की भी आदत थी कि पाक वतन तो पाक वतन, और जहाँ जहाँ मज़ारात पर वो हाज़िरी देते वो ज़रूर चादर लेके फ़ौरन हाजिर हो जाते थे। अल्लाह ताला बस उनके दरजात को बुलंदी अता फरमाए, आमीन। तीसरे कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ेंगे बिला ताख़ीर। हमज़ा फरीदी हमारे साथ हैं। मैं गुजारिश करूँगी कि नातिया कलाम पेश करें और आज चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से रोज़ाना अब 4 दिन तक एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा। आइए सुनते हैं हमज़ा आज कौन सा कलाम सुनाते हैं। हमज़ा फरीदी, बिस्मिल्लाह। एक उवैस साबरी, दूसरे काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके। आपके सामने असहाब में बैठा होता, आपके सामने असहाब में बैठा होता। जज़ाकल्लाह खैर। आप आगे बढ़ें, आपकी इजाज़त है। 3 तो कंटेस्टेंट हो गए। हाँ, कमेंट्स की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। आपा से गुजारिश करूंगी रेहान भाई से। आज तो मैंने डायरी बंद कर दी भाई, अरे कुछ कहने को नहीं है जी। वाह। और सबसे अच्छी बात, इंतखाबी कलाम हर एक के पास, एनर्जी, तलफ़ुज़ की कहीं गलती नहीं महसूस हो रही, और तो हम अपनी उस्तादी कहाँ दिखाएं, तो मैंने बंद कर। वाह 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 वाह। आपा ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मैं इसी को आपा ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। ऐसी कमेंट्स आप दे दिया करें रोज हमारे बच्चों को। इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। और वाकई लाहौर के बच्चों ने आज वाकई कमाल किया है, कोई गलती नहीं, ना सुर की गलती कोई महसूस हुई, मुझे तो महसूस हुई। भैया हसन भाई कोई गलती निकाल के बैठे हो तो अलग बात है। अच्छा नहीं, माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। फरीद हुसैन की आवाज़ जो है स्वीट वॉइस है माशाल्लाह, और मुझे पढ़ना भी इसका इनका बहुत पसंद है, और अच्छा पढ़ा, बहुत फील के साथ पढ़ा। सुर थोड़ा सा ऊंचा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए या उससे कंट्रोल ना हो, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह इनको नज़र से बचाए, इन्होंने इसको कंट्रोल में पढ़ा। अवैस साबरी साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। अंतरे में एक जगह 3 दफ़ा ली थी रिपीटेशन, 2 टाइम्स लेते तो और खूबसूरत हो जाती। तीसरी दफ़ा पे गए थे तो वो आपको भी थोड़ा सा दोबारा अगर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, और सेकंड में फिर आपने उसको 2 दफ़ा ही लिया था। ओके था। बाकी हमजा फरीदी भाई ने जो पढ़ा कलाम, वो पढ़ा तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कलाम बहुत ज़्यादा पढ़ा जा चुका है इस मुकाबले में। तो जो एक बार बात आ रही थी कि अब हम क्वार्टर फाइनल्स की तरफ है, क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया आज से, तो ये इस कलाम की जो फील थी वो पहले से मौजूद थी, तो हमने सुना हुआ बहुत है। तो मुझे मतलब उस अंदाज से जो कहना चाहिए, लेकिन इस वजह से हम नंबर नहीं काटेंगे। आप देखें ना, आप अपने हिसाब से नंबर्स दे रहे हैं, ये अपने हिसाब से नंबर्स दे रहे हैं, मैं अपने हिसाब से नंबर्स दूंगा। तो नंबर्स तीनों के अलग अलग हैं, तो मैं अपनी राय देने का बिल्कुल हक रखता हूँ ना। नंबर मैं अपने देने के, मैंने जो फील किया मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जजेस की अपनी अपनी राय है। और मुझे जो था कि ये कलाम मैंने सुन चुका था बार बार, और आप और बेहतर अंदाज से
کچھ اور جس طرح حمزہ نے یہ اویس صابری اور فرید حسین نے نیا کلام پڑھا تو اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. کیونکہ میری ایک بات جو مجھے فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو ہماری فیلنگز سب کی چل رہی ہیں میں سب کے نام دیکھ رہی ہوں کیونکہ ان کا میرے بھائی کا نام امجد فرید صابری تو ایک فرید حسین ایک اویس صابری اور ایک حمزہ فریدی. بڑی دور کی تم نے سوچی ہے. زبردست. ہر بچے کا کنیکشن نام سے میرے بھائی سے ہوتا ہے. اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ. اللہ اس موقع سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اچھا سا اناؤنس کر دیں تینوں بچوں کے لیے. تینوں بچوں کے لیے کر دوں. کر دیں. اجازت ہے. مستقبل میں دلہنیں دعا دیتے ہیں. دلہنیں ہے نا اچھی اچھی نیک ہماری بہویں ہوں اور ایسے ہی ثنا خوانی کرتے رہیے اور مقابلے میں آگے بڑھتے رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو تینوں ان ججز کی کیونکہ میں نظریں پہچانتی ہوں. پوچھ تو لیں پہلے کئی شادی شدہ تو نہیں نہیں وہ درمیان والے بھائی دعا ہی ہے. دوسری ہو جائے گی نا رمضان میں قبولیت کا ٹائم ہے. کیا مسئلہ ہے ادھر ادھر ہی دے رہے ہیں ادھر نہیں. ان کی شکلوں کی معصومیت بتا رہی ہے کہ شادی شدہ ہیں. یقیناً دوسری جانب اشارہ کہاں ہوتا ہے جن کی ہو چکی ہوتی ہے ان کے چہرے سے معصومیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو مطلب اچھا کل جو ہے مظلومیت طاری ہو جاتی ہے. ارے آپا کل امجد بھائی کے بڑے بھائی آئے ہوئے پتہ نہیں کسی بات پر انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں کی جو ہے نا وہ 4 بیویاں ہوتی ہے 4 شادی ہوتی ہے. پتہ کوئی سمجھ نہیں آیا نا بات کوئی ظاہر وہ کنیکٹیوٹی کر رہے. میں نے پکڑ لیا میں کہا دیکھیں میری شرارت جو ہے نا بھائی والی بھی کروں گی کہیں کسی کو اشارہ تو نہیں دے رہے کہ دوسری تیسری چوتھی کے لیے. کہتے ہیں ہاں اب اگر کوئی ہو نومینیشن تو مجھے بتا دینا. ظاہر ہے میری بہن یہاں بیٹھی ہے نہیں کہ میں بیٹھی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ان سے آج رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہم سب کی. ہم اس مقابلے میں تمام تینوں بچوں کو آج صابری بولوں گی. تینوں صابری بچوں کو جو ہے مقابلے میں آگے بڑھنے کی مبارکباد. میرے بھائی کی شہادت کے دن غم ہے جدائی کا لیکن خوشی اور فخر میرے بھائی کو شہادت کا درجہ ملا. بس اللہ پاک جو ہے ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. اور انعامات ایک دفعہ پھر دہرا دیجئے بلکہ آپ بتائیے جویریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. انعامات جو 3 کنٹیسٹنٹ جو ٹاپ 3 ہوں گے ہمارے ساتھ ان کو دیا جائے گا مکمل عمرہ پیکیجز الحرمین ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے. اور جو سیکنڈ آنے والے کنٹیسٹنٹ ہوں گے ان کو ہمانی کی جانب سے بھی دیا جائے گا عمرے کا مکمل پیکیج. اور جو فرسٹ آنے والے ہوں گے ان کو دیا جائے گا حبیب کوکنگ آئل کی طرف سے گاڑی. رکھیے حبیب سے اپنے دل کا خیال کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. جی آپ جزاک اللہ خیر. اور امجد صابری شہید ایوارڈ کی طرف بڑھیے. اچھا اسلام آباد سے کنٹیسٹنٹس ٹف ہیں. جی رضوان کو ذرا مائک دیں اور آصف کو ایک مائک دیں کیونکہ یہ لوگ بھی بیٹھے. جلدی جلدی بھاگ کے دے دو بیٹا. تھینک یو میجان. اچھا میں سمجھا یہ دونوں بھائی پراپس ہیں. پراپس ہیں ہمارے. آپ کو پراپ لگے؟ یہ پراپر ہیں. پراپر یہ پراپر ہیں. ان کا تعارف لازمی. یہ ہمارے لاسٹ ایئر کے ونرز جی آصف فرسٹ جو آئے تھے ہمارے ساتھ بہت اچھی آواز. اور رضوان جو ہے ہمارے ساتھ پچھلے سال کے 3rd تھے. اور سیکنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں محسن ہمارے ساتھ تھے 10 دن. یہ تینوں ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے ہیں اور ہمارے ساتھ عمرے پہ بھی تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. ایک بہت بولتے ہیں تو دوسرے بہت سناٹے میں رہتے ہیں لیکن ہیں بڑے پیارے. تو میں کہوں گی بریک سے واپس آئیں گے. آج میں چاہوں گا کہ ان کی رائے بھی لی جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہی چاہ رہی تھی کہ اس وقفے کے بعد ان لوگوں کی رائے سے آتے ہیں کہ آپ کنٹیسٹنٹس کیا لگ رہا ہے کہ کیسے آگے جائیں گے. اس وقفے کے بعد حاضر ہوئے گا. ہم ابھی واپس آتے ہیں. اس لیے تو دیا تھا اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر وہ جگہ سیدھا چمک رہی ہوتی ہے. میرے دل کی دوا کیجئے اپنی آنکھوں سے چوموں اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر امتحان تکلیف پریشانیاں آتی ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رحمت برس رہی ہے محمد
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तस्वीर लीक्स पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए, जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, बताया गया मुताल्लिका इदारे टेम्परिंग कर रहे हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दरपेश मसाइल पर समाअत, अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। पैनमा तहकीकात अहम मरहले में दाखिल, वजीर आजम जुमेरात को GIT के सामने पेश होंगे। इजलास में वजीर आजम के लिए सवालनामे पर मुशावरत। तहकीकात में रुकावट डालना जुर्म है, नवाज शरीफ को पेशी से कबल इस्तीफा देना चाहिए। कतरी शहजादा पेश न हुआ तो समझो केस खत्म हो गया। इमरान खान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। वजीर आजम GIT में पेश होकर आइन की बालादस्ती यकीनी बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान, मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर आजम अपनी 3 नस्लों का हिसाब देने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जमायमा के बैंक रिकॉर्ड की तफसील भी शामिल। कतर की सूरत हाल और खारिजा पॉलिसी पर ऑपोजिशन ने कल इजलास तलब कर लिया। खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम हमारे दबाव पर सऊदी अरब गए। जमशेद दस्ती की एक मुकदमे में जमानत, दूसरे की समाअत कल होगी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर स्पीकर ने जमशेद दस्ती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। FC बलूचिस्तान का ऑपरेशन रद्दुल फसाद, खुफिया मालूमात पर कार्रवाइयां, कालादम तंजीम BLA के 2 मतलूब दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत ने 11 पाकिस्तानी कैदियों को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया। वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स के हवाले किया गया। और कार्डिफ में पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार कमबैक, आमिर और
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सर को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और लैपटॉप उसकी जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा ताहिर और आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। वही प्रोग्राम वसीला, वही चैनल, वही टीम, लेकिन मुख्तलिफ लोगों के साथ। जी हाँ, इस वक्त मैं मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक साहब से मिलने जा रही हूँ जिनका नाम आरिफ है। आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप आरिफ की मिसेज उमन की। अच्छा, मिसेज है आरिफ की। चलें आपको जरा अंदर ले आती हूँ। आपका नाम? उज़्मा आरिफ। उज़्मा आरिफ, मेरे हम नाम है उज़्मा आरिफ। उज़्मा, चले थोड़ा सा उनको बुला लें आरिफ साहब को प्लीज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, कैसे हैं? मैं चप्पल लेके आ जाऊँ?
नहीं उतार देती हूँ, उतना साफ, अच्छा इतना घर साफ सुथरा रखा हुआ है ना माशाल्लाह। क्या हाल है आरिफ जी, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक भाई। खैर मुबारक। अच्छा आरिफ साहब, मैं आपसे बात करूंगी पहले तो बाइक के लिए, यूनिक बाइक वालों की बाइक हम आपको देने आए, लेकिन मैं ऐसे नहीं, शुक्रिया ऐसे नहीं लेंगे, पहले आप हमें बताएंगे कि इस बाइक को आप किस इस्तेमाल में लाओगे। मैंने तो बता दिया, लेकिन आप मुझे बताएं। इस बाइक पर मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से आऊंगा। आपके पास बाइक नहीं है? नहीं, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बसों में जाता हूँ। तो 24 वालों का भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बाइक दी, और यूनिक का भी। अच्छा, मतलब आप बाइक पे जाते हो और ये किसी निजी चैनल पे जॉब करते हैं, काफी साल से आप वहाँ? मैंने जी जी, तकरीबन मेरे को 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं, तो आप अपनी गाड़ी नहीं बना सकते? नहीं, अखराजात इतने, और किराए का मकान है तो पैसे बचते नहीं हैं, जिसकी वजह से बाइक नहीं ले सका मैं बाइक की तो की आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाइक, यूनिक बाइक वालों का हमेशा से यही कहना है कि आप और यूनिक हमेशा का साथ जी। तो ये इससे पहले मैं साथ एक उम्र का टिकट आपको दिखाना चाहूंगी जो अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल वालों ने हमें दिया है। और अल वफा का कहना ये है कि इनके पास जितनी भी सहूलतें हैं वो औरों से बेहतर है। इनकी बहुत खूबसूरत सी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। उज़मा का ये कहना है कि मेरे हस्बैंड को जब बाइक मिल जाएगी तो वो उस पर जाएंगे और इनकी मुश्किल आसान हो जाएंगे। इस वक्त उज़मा ने सिर्फ यही सोचा है कि मेरे मियाँ की मुश्किल आसान हो जाए। तो खैर, वसीला यूनिक बाइक और सबसे बड़ा वसीला इस वक्त 24 HD न्यूज़, साथ साथ मायाजीब और पूरी वहाँ जो टीम इस वक्त हमें देख रही है, इन सब लोगों को हमें दुआओं में याद रखिएगा। और ये हम चाबी फिलहाल ये आपके बच्चों को देना चाहते हैं, ये लीजिए भाई। और इस बात पे जरा ताली तो बता दीजिए, तालियां बजा दीजिए जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, और 24 वालों का जो, और यूनिक वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उज़मा। थैंक यू सो मच। इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आके तो हमारी हिम्मत बांध दी है कि चलो बाइक मिल गई है, अब अल्लाह का शुक्र है कि चलो बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकेंगे इंशाल्लाह। नहीं, बाइक पे लेके घूमना, लेके जाना और ईद बहुत अच्छी मनाना। इसी के साथ बस यहाँ से इतना ही। यही कहूँगी कि एक और जगह आई थी, एक और फैमिली मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ का आपको व्यू दिखाया था, वहाँ की आपको चीज़ें दिखाई थी। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़मा ताहिर को फिलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमारी तो अब अफ्तारी यहीं होने वाली है और आप लोगों को लिए चलते हैं स्टूडियो। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, अब एक बार फिर रमजान इश्क है 24 न्यूज़ HD पर आप हमारे साथ बराह रास्त अमजद भाई के पकोड़े बनने जा रहे हैं, और फिर सब लोगों के साथ साथ जो है वो दस्तरखान पे इंशाल्लाह होंगे और फातिह खानी इंशाल्लाह उधर बढ़ेंगे। लेकिन हम इस वक्त मिज़ान के किचन में हैं, और मिज़ान के बारे में क्या कहते हैं? मिज़ान कहते हैं हर चीज़ मिज़ान में बन के जो है वो मज़ेदार हो जाती है। आज मेरे चश्मे हैं तो थोड़े से आज कैसी मिज़ान में तो अच्छे जाते हैं, लेकिन मेरा चश्मे तो मैं बोलती आंखों से हूँ ना, तो मैं ना बोल। हाँ, ये एक्सप्रेसिव आईज हैं बहुत ज़्यादा। छोटी जो बूंदी है वो भी पकोड़ा नजर आ रहा है, बूंदी पकोड़ा नजर आ रहा है। हमारे छोटे से बच्चे को सब तंग कर रहे होते हैं, और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ अगर अभी अमजद भाई भी होते ना साथ में, और ये जो सारे जो मतलब जो फिर वो किचन में ही पाए जाते हैं। जो आपने भी वैसे मुझे सही छोड़ो मुझसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं रमजान की हवाले से नहीं बोल सकती, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले शोज में मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि अमजद भाई सिर्फ रमजान में नहीं, हम लोग वैसे भी। मैं लेंस लगा लूंगी, हैं? मैं लेंस लगा लूंगी। लेंस लगा लोगी, फिर अमजद भाई कैसे बात है ना, वैसे मैं नहीं करना चाहती थी बात, लेकिन हम इस वक्त किचन में हैं मीज़ान के। हमारे साथ रोज पटल जूफ के किचन टावल्स भी हैं, जो कि ये ना हो तो मैं, मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है किचन में काम करना, क्योंकि मुझे किचन जो है ना बड़ा ड्राई पसंद है, ना गीला हो, ना ऑयल हो, ना कोई चीज़ गिरी हुई हो। साथ साथ हमारे साथ है नेस्ले के मिल्क पैक और नेस्ले की दही भी साथ बिल्कुल है। क्रीम भी है हमारे पास। क्रीम भी है, ऑसम, दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा आपके पास क्या करशीजा में शीरी है? करशीजा में शीरी है। आज मैंने इलायची का शरबत भी बनाया करशी का। अच्छा, मीज़ान की पत्ती भी है? मीज़ान की पत्ती जो कल चाय बनी थी मीज़ान की पत्ती बनी? बिल्कुल जी, देख लें फिर। मैं यानी कि उसमें रबाब का कोई हाथ नहीं था? बिल्कुल नहीं। रबाब, अगर तुम कहीं से भी ये सुन लो कि इस कल की चाय में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था और सिर्फ आंखों का काम था डॉक्टर मेराहील और राजा हैदर भाई और मदिया की, जो देख रहे थे चाय बन कैसे रही है, और जिस रास्ते से मैंने पर्दा उठाना था वो ये था कि एक इंसान पिछले 3 दफा से मुझे कह रहा है
मेरी बहन रबाब रिकॉर्ड लगा रही हूँ, पीठ पीछे कहते पीठ पीछे लगाना चाहिए. मेक श्योर रबाब यू लिसन टू दिस, ओके. लेके 3 दिन से चाय बना रही हूँ, चाय बनाना है, चाय बना, मेरे हाथ की चाय बड़ी अच्छी भी चाहिए. ठीक है, डन हो गया. कल चाय बना रहे, चाय बनते बनते पूरी चाय बाहर चूल्हे पे. मैंने कहा माशाअल्लाह कितनी सलीकामंद मेरी बहनें हैं. 3 लड़कियां किचन में होते हुए चाय हर जगह जा रही है सिवाय पहन के. तो वो कल का जुमला आपका लोगों ने बहुत पसंद किया, आपा असगरी और अकबरी वाला. वाह 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 वाह. अब आप देखिए, मैं आपको एक और नई चीज दिखाती हूँ. अब देखिए, गौर से देखिएगा. अच्छा ये रिमोट है, आप देखती हैं और हंस पड़ती हैं. वेरी गुड, यूनिवर्सल रिमोट है. अच्छा ये नेचुरल है, नेचुरल. ये कंधा भी कम लोगों को नसीब होता है. देखिए आप, जरा फिर देखिए, कुछ भी नहीं करना. देखिए मेरे से इतना करना है. मैं नहीं हूँ यहाँ पे अभी आज. ये नेचुरल है. और पता है ये सब करने के लिए मुझे किसने कहा? मेरे भाई सोहेल जदी भाई ने. सोहेल भाई ने कहा आप देखें, यूं देखें और आप फिर राइट देखें. अल्लाह की शान, अल्लाह की शान. दस्तरखान बराए मीजान. वाह वाह. तो ये इस वक्त जो है ये उस पे होंगे हसन और रेहान. वाह 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 वाह. जिन भाइयों पे मैं जाऊं कुर्बान. वाह 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 वाह. चलें ठीक है. अब ये दस्तरखान जो है और ये ट्रांसमिशन, रोजे हो गए ज्यादा और लग भी गए ज्यादा. और ज्यादा रोजे लग जाते तो दिमाग पे बड़ा गहरा असर होता है. और इस वक्त कोई निशानी नहीं होती. कोई निशानी नहीं होती. रिजवान मियाँ माइक पकड़ो तुम. और तुम आसिफ का छुप के बैठ गया, गायब हो गया, सिग्नल आउट हो गया उसके. हाँ यहाँ जो बीच में नजर तो आओ, माइक पकड़ो. ये बताओ आज के कंटेस्टेंट्स के हवाले से. चलिए भाग के पकड़ लो, भाग के. हाँ जबरदस्त. जजाक बैटर बनाना है हमने. ठीक है. आज माशाल्लाह कंटेस्टेंट तीनों ही पढ़ने वाले. उधर क्या मैं तुम्हें परफॉर्म करने भेज रही हूँ? बात करो. इधर आप पढ़ो. आ जाए किचन में, आ जाए इधर. आज मैं अजीब से मूड में हूँ, इसको देख के अजीब हो गया. हाँ बताओ. माशाल्लाह आज जो थे तीनों पढ़ने वाले कंटेस्टेंट बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे जी. खासकर जो शुरू के 2 लड़कों ने पढ़ा, मुझे उनका पढ़ना बहुत अच्छा लगा. तीसरे ने भी पढ़ा और वो कलाम ऐसा है कि बार बार पढ़ा जाने वाला. पिछले दिनों से रेहान भाई और हसन भाई यही कह रहे थे कि कलाम चेंज करें, भले आपकी तर्जें वही हों, कलाम चेंज करके आए. उवैस ने भी, उवैस साबरी ने और फरीद हुसैन ने कलाम चेंज किए थे और बहुत अच्छा पढ़ा. और तीसरे वाले ने जो कलाम पढ़ा उसकी तर्ज वही थी जो सेकंड वाले ने कलाम की तर्ज पढ़ी थी. मैंने नोट किया, मैंने मुझे कुछ लगा तो शायद इसलिए मैंने रिजवान मैंने जो नोट किया है वो शायद सही नोट किया है. बिल्कुल सेम थी मगर कलाम का और उसकी फोर्स उवैस साबरी की बहुत अच्छी थी. बाकी आपने जो बात कही थी कि आज मुझे अमजद साबरी वाला नजर आ रहा है, तो बाकी वो साबरी अंदाज में उन्होंने जिस तरह अंतरा कहा था, भरपूर फोर्स के साथ, बहुत मजा. लगा था ऐसे कि उन्होंने ना बाकायदा अंदर सोल से आया है. लगता है कि वो कराची आना चाह रहे हैं. हाँ अच्छा, ये कितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं ना. मैं से कान खींचती हूँ. लाहौर लाहौर है ना फिर, है जी. लाहौर ये सपोर्ट तो फिर करना है. लाहौर किधर गया तू? आसिफ के बच्चे इधर आ जाओ फटाफट, माइक ले लो इसके हाथ से. आप बताओ कैसा था मुकवाल को? सलाम जीते रहो. हाँ माशाल्लाह तीनों कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा पढ़ा. हाँ. और मेरी तमाम कंटेस्टेंट से यही गुजारिश है कि मेहनत करें और भरपूर तैयारी से आएँ, क्योंकि अगले मुकाबला बहुत टफ है. आप ये भी बता दें कि आपने जाना है माया आपी के साथ उम्रे पर, तो मेरी तरह खामोश ना रहिएगा और बगैर बताए गायब ना हो जाइएगा उम्रे पे. माया बाजी, इसका एक आसिफ की बात बताता हूँ. ये पहले दिन हम एक दिन पहले पहुंचे थे उम्रे पे मदीना शरीफ. तो अगले दिन की फ्लाइट से जब ये दूसरे ग्रुप के साथ पहुंचे आसिफ साहब, तो पहले दिन हम होटल के बाहर जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा ये होटल देख लो इलाका, उसके बाद अब नमाज के बाद हम इस जगह मिलेंगे हरम में. तो ये पहले दिन ही गुम हो गए. अच्छा पहले दिन गुम होते ही तो फिर एकदम से इसने मोहसिन और रिजवान ने जुमला, एक नाज शरीफ का जुमला है, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे. हम वाकई थक गए थे. हम वाकई हालत हमारी परेशान हो गए थे. हमारे साथ रहिए, तुम लोग बोलते रहना, कोई मसला नहीं है. वक्फे से वापस आप फिर बोलना, अपना शो है तुम्हारा. टेक योर टाइम, नो इशू. आते हैं साथ रहिएगा. वक्फे के बाद तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं.
मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकारों पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकारों पे सर कैसा लगेगा। आ जाए किसी रोज मेरे घर जो शहीद की, आ जाए किसी रोज मेरे घर
लगेगा के लिए जिब्रील का पल कैसा लगेगा मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा रख दूं तन सरकार पे सर कैसा लगेगा जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा गुंबद खजरा जब से है इतना हंसी गुंबद खजरा इस बार है ऐसा वाह 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 कैसा लगेगा इस बार है ऐसा सौदर कैसा लगेगा नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमजद भाई का पढ़ा हुआ कलाम था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। हमारी तरफ से ये हदिया कबूल है। आमीन। बहुत ही याद आ गई वो कितने शौक से पढ़ते थे ये कलाम, तो बहुत ही ज़्यादा। मैं नजरे करूं जाने जिगर कैसा लगेगा, आय हाय हाय हाय। याद आ रही है उनकी बहुत ज़्यादा। आज तो बनता है उनकी बहुत ज़्यादा याद आना भी, बस उन्हीं की पसंद की आ रही हूँ। उनको मिर्चों के अलावा वो सारे पकौड़े खाते थे और आलू के बहुत पसंद थे, जैसे कल भाभी ने बताया। बैंगन के मुझे आज याद आया। फिर इंशाल्लाह देखिए पूरी कोशिश करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक छुपाई हुई एक चीज़, यहाँ किचन में मेरे पास एक छोटा है कोई छुपा हुआ, लेकिन है नहीं, वो जाहिर है पता है क्या, हमारी टीम नहीं आप लोग नहीं कह रही, कैमरे को कह रही थी। अच्छा होता ये, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो टीम है ना, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, तो वो दिन रात एक करके जब काम करती है ना ये टीम, माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर ना लगा इन लोगों को। मेरी और इतना ज्यादा मेहनती मेरी टीम, मोहब्बत भरी। मैं कहती हूँ ऐसी टीम होना ना नसीब वालों को। और हमारी टीम में हमारी टीम में पागल भी हैं थोड़े से। अच्छा, उन पागलों के पीछे नंबर भी लगे हुए। ये अरे नंबर पीछे वैसे ही बढ़िया। एक नंबर पागल, नंबर राजा भाई जी नहीं, मेरा माइक है। राजा भाई आपके माइक नहीं है मेरे पीछे। राजा भाई वो माइक नहीं है वो माइक नहीं है। अच्छा रिजवान, तुम कुछ कह रहे थे जो बता रहे थे आसिफ वाले की बात। मैं कहूंगी कि जरा सा इन दोनों को भी अगर आज सुना जाए, बहुत दिन हो गए इन दोनों को सुना नहीं है हमने, तो हम बढ़ा रहे हैं आज चिकन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पालक के पत्ते के पकोड़े। और इतनी देर में ये लोग आसिफ और रिजवान हसान के साथ जो है, आ जाओ आसिफ, दोनों मुझे दोनों बच्चे पढ़े। जैसे हसान भाई से पूछो कौन सा पढ़ना है, और बस जैसे ही इंशाल्लाह प्लेटर तैयार हो जाएगा हम फाते की तरफ चलेंगे। आप सब लोग ठीक है, खैरियत से? सॉरी आज जरा सा जो है ना वो हम डिफरेंट एक मूड में थे अमजद भाई की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह खुश रहने वाला भाई मेरा, हम सबको खुशी रखने की कोशिश करेंगे, हंसता खेलता मेरा भाई। अच्छा, मैं जो एक बात कह रहा था वो ये थी जो आपने कहा ना, हसान भाई ने जिसकी निशानदेही की थी कि जब ये गुम हो गए थे, तो एक शेर मैंने कहा था कि हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। उस पर मुझे इसके भाई का फ़ोन आया यहाँ से ना, पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि यार मदीने में तो बिछड़े हुए लोग मिलते, तुमने जो यहाँ से तुम्हारे साथ किया उसको तुमने गुम कर दिया, ढूंढो यार मिल जाएगा वो। अब तुम क्या कहोगे इसके जवाब में? नहीं, इन्होंने झूठ कहा है, ये भाई ने ऐसा नहीं कहा हुआ, ऐसा नहीं कहा हुआ, अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना साहब हमारे मोहसिन, इतना मुझे याद आ रहा है इस वक्त, ये तीनों ना जब सारा हम लोग दिन में इबादत वगैरह करके, जब हम नवाजिश भाई हमारी सारी खातिर तवाज़ो कर लेते थे, खाने मामले चाय वगैरह, चाय भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मिली, तो हम जब फारिग होते थे रात में कि चलो थोड़ी देर बाद तहज्जुद के लिए निकलेंगे या थोड़ी देर बाद फजर के लिए निकलेंगे, तो सारी एक महफिल बन जाती थी सारी, हैं? अब आपस सुन रही है ना, अभी तांदा सुन रही है। अच्छा, अब सारी महफिल बने, अब जो जिसने खाना खाया तो ठीक है, जिसने नहीं खाया उसका जो है खाना वो रखा हुआ। वो रात में ठंडा भी बातों के साथ जो होता था ना, एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन वो एक हमारी नशिस्त होती थी,
اور اس میں ہم سارے بیٹھ کر پورے دن کی جو ہے نا ایک دوسرے کا یہ ریکارڈ لگاتے رہتے تھے. یہ لوگ یہ ایک دوسرے کے ریکارڈ لگانے میں ماہر. اب چلو تم دونوں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں پڑھا ہے, جلدی سے میں کہتی ہوں آج امجد بھائی کے پیار میں اور دل سے ان کے لیے کچھ پڑھ ڈالو اور سب کو پڑھواؤ ساتھ میں. بسم اللہ. ہاں جاؤ. نبی رمضان صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار, صرف ایک بار. جس محفل میں سب موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ سب مل کر ذرا محبت کے ساتھ پڑھیں. صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا میرا پار, ہوگا میرا پار. ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف, ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف. بس ایک بار چلے آؤ صفا کی طرف. صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا میرا پار, ہوگا میرا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار, صرف ایک بار. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بڑھتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا میرا پار, ہوگا میرا پار. کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا. کہاں فرحاب نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا. زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. کہا یہ سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو. کہا یہ سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو. محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہونے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں
और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरी टीम ने लगाया है वो सलाम जो हमने हसान भाई की रहनुमाई में रिकॉर्ड किया। और बस इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा, हम ज़रूर पढ़ेंगे आपके साथ। अब अमजद भाई का प्लेटर जो है बेटा ठंडे शरबत के साथ, बोतल नहीं, ग्लास में नहीं, बोतल में। उनको बोतल पसंद थी, ठंडी यख। और अब हम जाएंगे फातिहा की तरफ। अमजद भाई के लिए रोज़ होती है, आज ज़रा थोड़ी ख़ास हो रही है। दही बड़ी रख दी है उसमें पापड़ी डाली है, चाट मसाला डाला है। वेरी गुड। पापड़ी हाथ से पूरा मसल के उसका कीमा बना के उसके ऊपर दही बड़े पे छिड़क के उसके ऊपर चाट मसाला डाल के और ठंडा यख शरबत। और आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पता नहीं उनको अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक बस इन मोहब्बतों को कायम रखे। रेहान भाई फातिहा कर दीजिए, हम इसको किसी मुस्तहिक की तरफ भेज देते हैं और फिर दुआ से हम ब्रेक पे जाएं। जी, आज हम लाइव वैसे तो रोज़ाना भी हम फातिहा कर रहे हैं माशाल्लाह। और अमजद भाई के लिए किसी ने जो है वो यूसुफ हुसैन कातिब साहब ने एक शेर लिखा, क्या समझते हैं मुझे मार के जाने वाले, क्या समझते हैं मुझे मार के जाने वाले, बाद मरने के ज़माने से चला जाऊंगा, जब भी दुनिया में पड़ेगा कोई भर दो झोली, याद बन के मैं ख्यालों में चला आऊँगा। तो ये कलाम इनका अमर हो गया और रहती दुनिया तक बच्चे बच्चे की ज़बान पर रहेगा। मेरी गुजारिश है तमाम देखने सुनने वालों से कि जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं एक बार सूरह फातिहा सूरह इखलास 3 बार पढ़ लें ताकि हम अमजद भाई को भी पेश करें और आप सबके भी मरहूमीन को इंशाअल्लाह सवाब पेश होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम सदका अता हो इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता
جو مفلس ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب اونچا دلوں کے چمن کا، یہاں جتنے بھی ہیں جمع تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے مالک مولا پروردگار عالم، یہ کلام کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، پڑھنے والے امجد صابری کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہم نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی، الہ العالمین تو ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما دے، جو کچھ ثواب تو ہمیں عطا فرمائے، تیرے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ قبول پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، امہات المؤمنین، خلفاء الراشدین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ درجہ بدرہ امجد صابری، ان کی پوری فیملی میں جو دنیا سے چلے گئے، ان کے والد مرحوم، ان کے چچا اور تمام فیملی کو جو دنیا سے چلے گا، مولا بالخصوص شہید امجد صابری کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ مولا قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما، نور کی چادر پر عطا فرما، الہ العالمین۔ کروٹ کروٹ امجد صابری کو الہ العالمین جنت عطا فرما، جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما۔ ہم سب جو یہاں دعا میں شامل ہیں، اسکرین کے سامنے بیٹھ کر یہاں جتنے حاضرین ہیں، الہ العالمین جن جن کے جو عزیز اقربا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، میرے والدین کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے بھائی عارفین بھائی کے درجات بلند فرما، ہمارے راحیل کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے آپا مایا آپی کے والد مرحوم کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحاج مرحوم خورشید احمد کے درجات کو بلند فرما، سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، اشرہ مغفرت جاری ہے، الہ العالمین اشرہ مغفرت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ مولا بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا
جن کے روزے تو قبول کر رہا ہے ان کے روزوں کا صدقہ مولا ہمارے بھی روزوں کو قبول فرما لے. جن کی نماز تراویح تو قبول فرما رہا ہے مولا ان کا صدقہ ہماری بھی نمازوں کو قبول فرما, ذکر و اذکار کو قبول فرما. رب کریم ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ جو بے روزگار ہے اسے اچھا روزگار عطا کر دے, جو بے اولاد ہے اسے اولاد صالحہ عطا کر دے, جو بے گھر ہے مولا اسے گھر عطا فرما دے. سب کو خوشیاں عطا فرما. ہماری 24 HD نیوز کی پوری ٹیم کو مولا دارین کی برکت عطا فرما, ترقی عطا فرما, برکت عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. مولا ہم سب کا ظاہر و باطن اچھا کر دے, ہمیں نیک بنا دے, عاشق رسول بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. مولا سب پر اپنا فضل و کرم فرما, سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا, مولا بن مانگے عطا کر دے. سب پر کرم فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, آمین. جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. سب پڑھیے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر امداد میری کرے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو رسوائی زمانہ دامن میں چھپا لینا. مجرم ہو زمانے کا محشر